Today's lecture is color of coordination compounds, as well as we are learning stability. This is the last part of the coordination compound remaining. So guys, let's complete it today. I'm going to test also in the evening on this topic, full coordination compound. So we revise all the lectures. The lecture number 14. See, let's start करें. Total 7 students I think participates. चलो बाकी का हो जाएंगे ज्वाइन तो ऐड करेंगे. Let's start. Today our theme Srishti, Bhagya, Akshay, Deep, Anurag, the Vaishnavi, Hiral, Deep. Good morning all of you. Let's start today's lecture. Color of the coordination compounds. This is based on the CFT crystal field theory. Crystal field theory is based on d orbital. D orbital here, that is the last VBT or the Werner series, they fail. They not consider what is the color of the coordination compound. But CFT give the color of the coordination compound. Why they get the color and how they get the colors? Means colorful compounds are formed. Why these colorful compounds are formed? This was explained by only and only here. This is the name of the theory is a CFT crystal field theory. Crystal field theory for the octahedral and tetrahedral. Octahedral, tetrahedral, octahedral case. Octahedral means 6 ligands are there, right? 6 ligands. That's why divided into 2 parts. D complex, DG orbital divided into 2. EG and the T2G. EG goes up, T2G is below. And energy gap is a delta naught. This energy gap is a more. They start to pairing. Energy gap is less. Start to what is a goes up, that is a EG level. Means only he considers the d orbital. And color of the coordinates compound is also based on the d orbital, DD transaction. What do you call? DD transaction. Color in coordination compounds. The color in coordination compound can be explained on the basis of crystal field theory. On the basis of crystal field theory. For example, suppose TiH2O6. This is an octahedral complex. Ti, titaniums, whose oxidation number is what? 3. Oxidation number 3, that is last orbit D1. It is a D1 orbitals, right? 3D2, 4H2 argon configuration, electron configuration. If you written there, आपको argon का configuration means 18. This 3, 2, 6 and 4H2 means total what? 22 is what is the atomic number. But at the state of the Ti3 plus, Ti3 plus इस configuration becomes as Ti3 plus is equal to 3D1. क्या बनने वाला है? 3D1 देखो यहाँ पे 3D2 4H2 है, राइट? तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन सा लूज होगा? फ्रॉम एस ऑर्बिटल. उसके बाद क्या होगा? डी ऑर्बिटल का. तो एस ऑर्बिटल में यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा? और लूज करेगा. टोटल 3 इलेक्ट्रॉन इट लूजेस एंड इट गेट Ti3 प्लस. ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 क्यों है? समझ में आया? बिकॉज H2 इज अ न्यूट्रल लेयर, नॉट एनी चार्ज. कोई भी इसके ऊपर चार्ज नहीं है, राइट ना? Means is a category 0 charge, that the total charge on the complex that equal towards is a oxidation number, guys, right now. Ti3 plus your oxidation state is what? 3. Oxidation number is a 3. So electron configuration is a atomic number Z is equal to 22. That's why configuration argon configuration plus 3D2 4H2. Mean last orbit here 4H2 and 3D2. Friends goes to oxidation state at the Ti3 plus. जब वो Ti3 plus फॉर्म करेगा तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे. तो 3 इलेक्ट्रॉन लूजेस, then electronic configuration at oxidation state will be here Ti3 plus is equal to 3D14H0. क्या रहा है? 3D14H0. That is last orbit there is a D1 electron. Only 1 electron. देखो color of coordination compound के लिए first thing यहाँ पे DD ट्रांजिशन होना चाहिए. सेकंड थिंग वहां पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. क्या होने चाहिए? अनपेयर. डीडी ट्रांजिशन कब होगा? जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ही, गाइस.
गेटिंग इट्स माय पॉइंट हियर। डी ट्रांजिशन जब होगा जब वहां पे अन पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका मतलब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो अभी ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिलती है? दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द फोटोन। फोटोन एनर्जी आपको मालूम है, रेडिएशन टॉपिक मालूम है आपको, रेडिएशन 11 में रेडिएशन था ना, वहां पे फोटोन की एनर्जी क्या होती है? फोटोन एनर्जी इज इक्वल टू h into c। h is a Planck constant, h into mu, h into mu into c, फोटोन एनर्जी। याद है? सबको समझ में आ रहा है क्या? रेडिएशन चैप्टर, यहाँ पे light is a fall on the any object that is absorb the light, absorb the energy, that is a photon energy, that is a h into c। h is a Planck constant, c is the speed of the light upon lambda, upon lambda, lambda is the wavelength of light, and जो लाइट उसने एब्सॉर्ब की है उस लाइट की वो वेवलेंथ। इसका फॉर्मूला क्या है? h into c upon what is the lambda, where h is a Planck constant, c is the velocity of light 3 into 10 to 8 meter per second, and lambda is the wavelength। Getting it? Means here delta naught mean energy gap, जो एनर्जी गैप है, दिस डेल्टा नॉट फॉर्मूला एच सी अपॉन क्या होने वाला है? लैम्बडा। क्या होगा? एच सी अपॉन लैम्बडा। मींस डेल्टा नॉट इज अ डिफरेंट फॉर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स। अभी एनर्जी गैप ही ज्यादा है तो वो क्या करेगा? पेयरिंग करेगा, राइट, अकॉर्डिंग टू रूल, डिपेंड्स अपॉन लिगैंड, डिपेंड्स अपॉन द लिगैंड स्ट्रांग है या वीक है वो। नाउ सी ए कॉम्प्लेक्स दिया आपके सामने TiH2O6 3+, Ti3+, लास्ट ऑर्बिट d ऑर्बिट कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। क्या है? only one electron, right? This only one electron is a field into d orbitals such that dxy, dyj, dzx, dx square minus y square and dz square 5 sub orbitals are there, right? So electron कहाँ fill होगा? ये एक ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इसका स्प्लिटिंग होगा। स्प्लिटिंग कौन सा? ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? What is the complex? It is an octahedral or tetrahedral, guys? Is it octahedral or tetrahedral? कौन सा कॉम्प्लेक्स सही है? क्या ये ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल है? रिप्लाई मी, सब सुन रहे हैं ना? सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस वैष्णवी, इट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यस आरती, टोटल ligands are 6 there, total ligand 6, that is it is a octahedral, it is a octahedral। octahedral complex divided into two energy level Eg and what is the 2g। Eg 2 वर्ड्स है तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऊपर रहेंगे और dxy, dyj, dxz क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। बिलो द बैरी सेंटर, अबोव द बैरी सेंटर। यानी इसको स्टेबिलिटी के लिए ऊपर वाली है प्लस 0.6 डेल्टा नॉट एनर्जी है, और स्टेबिलिटी जो नीचे डाउन में है वो उनका कितना? -4 डेल्टा नॉट। हर एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? -4 -0.4 डेल्टा नॉट, और ऊपर वाले उनका कितना? प्लस 0.6 डेल्टा नॉट। सीरीज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज फिल देयर इन dxy। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा? फिर एनी लिगैंड्स, ये जो गैप है, गैप क्यों होता है? यहाँ पे एनर्जी गैप कब होता है? जब लिगैंड्स अप्रोच करेंगे तो। अभी Ag ऊपर है, T2G नीचे, इसमें क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लिगैंड्स आर अप्रोचिंग एक्सियली, along the axis they are approaching, and dx square minus y square dz square also along the axis, that's why repulsion more, so they goes up, and dxy, dyj, dzx remains what is the below, क्योंकि वो बैरी सेंटर पे एनर्जी लेवल क्या बैलेंस करना है। देन नाउ हियर डेल्टा नॉट arises, delta naught is a because of the ligand अभी अप्रोच करा, that's why is the splitting, crystal field splitting energy delta naught। H2O है, राइट, H2 आ रहा है, H2 6 लिगैंड आ रहे हैं, तो एनर्जी गैप क्या हो गई है? बढ़ गया, डेल्टा नॉट हो गया ये। अभी एनर्जी गैप बढ़ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट, H2O6 क्या आ रहा है? अप्रोचिंग हो रहा है, इसलिए एनर्जी गैप क्या हो गया? बढ़ गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन जब डी ट्रांजिशन करेगा, मतलब डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होगा,
It absorb the light, or it absorb the light that, or absorb the energy. That energy means is equal to delta नॉट. क्या होगा वो? डेल्टा नॉट. एंड डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, देखो ना ये डिफरेंस कितना, बीच में डिफरेंस कितना है? डेल्टा नॉट का डिफरेंस है, राइट ना? ईजी और T2G लेवल के बीच में जो गैप है वो गैप कितना है? डेल्टा नॉट का है. तो यहां से ऊपर जाने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ऊपर जाने के लिए उसको एनर्जी लगेगी, वो कितनी लगेगी? डेल्टा नॉट लगेगी, राइट ना? कहाँ पे? यहाँ से यहाँ पे बैरी सेंटर है और एजी लेवल है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन ये वहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एनर्जी टोटल कितनी लगेगी? डेल्टा नॉट. एंड डेल्टा नॉट इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा. मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि आपको? यहाँ पे डेल्टा नॉट जो रहेगा, डेल्टा नॉट कितना रहेगा? डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, दिस डेल्टा नॉट इज इक्वल टू, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा वो एब्सॉर्ब एनर्जी को एच इंटू सी अपॉन क्या होता है? लैम्डा. अपॉन लैम्डा. लैम्डा मींस वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट वो एब्सॉर्ब कर रहा है उसका वेवलेंथ, विजिबल लाइट का वेवलेंथ. विजिबल लाइट कौन सा? विजिबल. विजिबल कौन सा लाइट है? विबजर, VIBGY वॉट, जो 7 कलर्स रेनबो, वो क्या है? विजिबल लाइट, जो हम देखते हैं लाइट, व्हाइट लाइट, वो क्या है? विजिबल लाइट्स. एंड डिफरेंट कलर्स आर डिफरेंट वेवलेंथ, राइट? नो, सबको समझ में आ रहा है ना? क्या फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है? बोलो. इट्स गेटिंग फास्ट और स्लो? सबको समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक? डेल्टा नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. यानी कि इलेक्ट्रॉन जब डी ट्रांजिशन करेगा तो क्या करेगा? लाइट से वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा. दिस एनर्जी मींस व्हाट इज द डेल्टा नॉट, दैट इक्वल टू एच सी इंटू क्या होगा? लैम्डा. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस हियर, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. यहाँ से आपको कलर मालूम पड़ेगा कि वो कलर कौन सा ले रहा है और आपको कौन सा कलर वो दिख रहा है. यानी कि आपको कलर दिखता है, इसका रीजन क्या है? उसने कलर कौन सा एब्सॉर्ब किया है, कलर उसने कौन सा लिया है और कौन सा देगा, ये भी है. जो कलर लेता है वो कलर देता नहीं है, जितना कलर लिया उतना देगा नहीं. ये भी हमें सीखना है यहाँ पे. कौन सा कलर लेगा और कौन सा देगा. कौन सा लिया है कलर तो उसमें कौन सा कलर निकलने वाला है, कौन सा आपको कलर दिखेगा उस कॉम्प्लेक्स का, राइट? यहाँ पे डेल्टा नॉट इज इक्वल टू व्हाट? एच सी अपॉन क्या है? लैम्डा. एच फॉर प्लैंक कांस्टेंट, सी फॉर वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज अ वेवलेंथ. डेल्टा नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा अपॉन में है. इसका मतलब क्या हो गया? लैम्डा अपॉन मींस डेल्टा नॉट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा. मींस लैम्डा जितना इंक्रीज होगा उतना डेल्टा नॉट का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज. लैम्डा ग्रेटर, डेल्टा नॉट इज लेस. लैम्डा मोर, sorry, lambda greater, delta not less. Lambda less, delta not is greater. Value of delta not depends upon what is a lambda, means wavelength of light. किसके ऊपर डिपेंड्स है? wavelength of light के ऊपर. ओके, now see, that is here TiH2O6 is complex here. It absorb light energy and gives absorb energy photon type equation here, E is equal to H into mu, and delta naught is equal to H into mu upon what is the lambda. Okay, H of H into mu. Mu means frequency. Frequency is a and wavelength. दोनों में क्या inverse proportion है? You know, frequency is equal to, yeah, speed of light. Speed is equal to what? Distance upon time. Distance upon time. And speed is equal to क्या होता है? H into lambda. क्या? H into lambda. देखो फॉर्मूला है ना, देखो ये अभी म्यू है. v स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे कौन सा हो गया? लैम्डा. अपॉन क्या हो गया? टाइम. टाइम मतलब t. एंड t और फ्रीक्वेंसी में दोनों में रेसिप्रोकल है. दैट इज v इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? लैम्डा 1 अपॉन t इज इक्वल क्या होता है? म्यू होता है फ्रीक्वेंसी, राइट?
ये है म्यू, राइट। तो यहाँ पे आपको चाहिए म्यू, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू वी अपॉन सी। वी मीन्स कौन है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वी के बदले यहाँ पे सी लिखा, तो सी अपॉन क्या होगा, लैम्बडा होगा, सी अपॉन क्या आ गया, लैम्बडा, राइट। और यही मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया, तो क्या हो गया, एच, तो एच रहेगा यहाँ पे, लेकिन सी का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, सी इज इक्वल, म्यू इज इक्वल क्या हो गया, सी अपॉन क्या हो गया, लैम्बडा, जो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, डेल्टा नॉट का मीन्स एनर्जी, गेटिंग इट, एच सी अपॉन लैम्बडा, एच सी अपॉन लैम्बडा, या एच इंटू म्यू बोल सकते हो। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन क्या है, लैम्बडा, ओके। चलो हम लेट हो गए आज, तो सब लेट है। चलो, एब्सॉर्ब एनर्जी फोटोन टाइप इक्वेशन इज E इज इक्वल टू एच इनटू मी। नाउ ट्रांसमिट एनर्जी, जो एनर्जी वो लेगा वो ट्रांसमिट अलग होगा, मीन जितना लेता है उतना ट्रांसमिट करेगा नहीं। ट्रांसमिट कौन सा करेगा, इट इज अ ट्रांसमिट अ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या, अपोजिट, यानी जो ले रहा है उसके अपोजिट कलर क्या होगा, देगा। लिया है उसने ब्लू, देगा क्या, ऑरेंज। लिया है ब्लू, देगा क्या, ऑरेंज। लिया है रेड, देगा ग्रीन। ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अभी कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन से हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा लिया है कौन सा देने का है। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या रहेगा, ब्लू के लिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, वी। वायलेट के लिए कलर कौन सा रहेगा, उसके बाद रेड के लिए कौन सा है, फिर वी आई बी जी। ग्रीन है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, येलो है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है, ये भी हम पढ़ने वाले हैं। So here it absorbs the light that is equal to h into what, mu, and gives what is a transmit, it is a what, complementary होगा, उसका क्या होगा, complementary। ये पॉइंट समझ में आया आपको, यानी इलेक्ट्रॉन dd, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स कलर दे रहा है इसका मतलब वहां पे dd ट्रांजिशन हो रहा है। क्या होता है, dd ट्रांजिशन होना चाहिए, dd ट्रांजिशन नहीं होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, तो वहां पे डी ट्रांजिशन होगा नहीं, वहां पे कलर फॉर्मेशन होगी नहीं, या वो कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा या व्हाइट रहेगा। वो कौन सा रहने वाला है, कलरलेस या व्हाइट रहने वाला है। जहां पे जैसा कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सब 3D10 है, क्या है 3D10, 10 का मतलब सब के सब ऑर्बिटल क्या हो गए, फील हो गए, सबके सब ऑर्बिटल फील है, इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन होगा नहीं, डी से डी में इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स कलर देगा नहीं 3D10 के लिए। वो कैसा रहेगा, कलरलेस। कोई भी 3D10 कौन सा भी कंपाउंड मेटल है, डी ब्लॉक एलिमेंट का कौन सा भी मेटल, ट्रांजिशन मेटल जिसका लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने 3D10 है, 10 electrons are there, it not gives any color because there is no dd transition, there is a no dd transition होने वाला नहीं है वहां पे, तो वहां पे कलर मिलेगा नहीं। नोट डाउन दिस पॉइंट। see it's a blue green colors and gives purple। अबे ब्लू ग्रीन उसने लिया, पर्पल लिया, मींस एब्सॉर्ब लाइट जो था उसका कलर कौन सा था, ब्लू, और जो इमिट किया, इमिट मतलब बाहर दिया, वो कौन सा था, पर्पल। अब ब्लू ग्रीन का पर्पल ये सब आपको बाइट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। So chemistry, don't mug up, understand concept and it will be clear and all question we can be solved there। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे तो आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। आपके पास ट्रिक्स है, आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप आंसर, कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया तो इसका आंसर आप दे सकते हो। लास्ट में यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी आपको करके आऊंगा, उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको दे दूंगा यहाँ पे, यानी कि विदाउट मगअप, कोई भी यहाँ पे मगअप करने का नहीं है, कोई बायोटिंग वर्क नहीं है। आपको खाली यहाँ पे एटॉमिक नंबर आप पढ़ते हो पीरियोडिक टेबल में, एलिमेंट डी ब्लॉक के कौन से है, उनके लिगैंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, एनर्जी गैप क्या है, वो ऑक्टाइड है, टेट्राइड, ये तो पता होना चाहिए। और ये आपने अभी तक 12 लेक्चर हो गए, उसमें से पढ़ा भी है, तो यहाँ पे कलर में वो पॉइंट तो वहां पे आएगा नहीं, वो आप तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो आपको वहां पे क्लियर किया है। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपको एक तो लिगैंड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, उसमें डी ऑर्बिटल है क्या नहीं है, डी ट्रांजिशन हो रहा है नहीं है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है,
ये मालूम होना चाहिए बस। ये आपको पता है तो यहाँ पे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो आपको डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ समझ में आने वाला है। यहाँ पे क्या क्या ब्लू ग्रीन था, दिया कौन सा, पर्पल। अब ब्लू ग्रीन का पर्पल क्यों हो गया, कैसा हो गया और कैसे उसको याद करना, देखो या उसको हाउ टू कीप इन माइंड यूर सी रीजन फॉर कलरिंग कॉम्प्लेक्स, जो अब मैं आपको एक्सप्लेन किया। फर्स्ट रीजन हुआ डीडी ट्रांजेक्शन होता है। सेकंड रीजन इज अ चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर मतलब जैसा कि CO2 प्लस है, CO2 प्लस का क्या हो गया, CO3 प्लस हो गया, तो भी वहां पे क्या होगा, कलर चेंज होगा। CO0 है, CO0 का क्या हो गया, CO3 प्लस हो गया, मतलब चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर, डी ट्रांजिशन, दिस टू रीजंस फॉर द कलर इन कॉम्प्लेक्स। टू रीजंस आर डी ट्रांजिशन और कौन सा, चार्ज ट्रांसफर। इन डी ट्रांजिशन लिगैंड शुड बी प्रेजेंट फॉर स्प्लिटिंग। जब लिगैंड ही नहीं है डी ट्रांजिशन होगा क्या, लिगैंड आने वाले इसलिए क्या होता है, एनर्जी गैप बढ़ता है ना। लिगैंड आ रहे, मेहमान आ रहे, मेहमान आ रहे इसलिए एक साइड होते हैं, वो एक साइड होके कुछ लोग ऊपर रहते, कुछ लोग नीचे थे, फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे, या ग्राउंड फ्लोर और क्या सेकंड फ्लोर पे। लिगैंड शुड बी प्रेजेंट फॉर स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग के लिए क्या चाहिए, लिगैंड चाहिए। लिगैंड नहीं आ रहे, कॉम्प्लेक्स खाली है तो वहां पे लिगैंड नहीं है, तो स्प्लिटिंग नहीं है। स्प्लिटिंग नहीं है मतलब कलर वहां पे होगा नहीं। लिगैंड शुड बी प्रेजेंट फॉर स्प्लिटिंग। And next configuration should be between 1 to 9, D1 to D9. Why? Because D1 to D9 वहां पे आपको क्या मिलेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। D10 में मिलने वाले नहीं है, D0 में मिलेंगे नहीं, तो D1 to D9 वाले कॉम्प्लेक्स ही क्या करेंगे, वहां पे कलर फॉर्म करेंगे। समझ में, लिगैंड शुड बी प्रेजेंट फॉर स्प्लिटिंग एंड कॉन्फिगरेशन शुड बी बिटवीन D1 to D9, बिकॉज D1 to D9 देखेंगे वहां पे एक ना एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मिलेंगे, वहां पे क्या होगी, अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफर देखो, the complex formed by the charge transfer is the exceptions are this KMnO4 purple pink, K2Cr2O7 is the orange color, AgBr pale yellow in color, AgI is yellow in color, and K4FeCN6 lemon yellow color. These are the exception for this. ये आपको थोड़ा याद रखना है इसको, ये क्या कुछ एक्सेप्शन है यहाँ पे। जो KMnO4 उसका कलर कौन सा है, पर्पल पिंक। K2Cr2O7 इसका क्या है, ऑरेंज है। AgBr पेल येलो है, AgI येलो है, K4FeCN6 ये कौन है, लेमन येलो है। These are the exceptional. These colors are due to the charge transfer phenomenon. These are the charge transfer. बाकी आपको ऊपर का पार्ट अभी पढ़ना है। ये क्या है, these colors are due to the charge transfer phenomenon. मींस चार्ज ट्रांसफर हो गया, that's why this give the color. यहां तक क्लियर है सबको। रीजन फॉर कलरिंग कॉम्प्लेक्स समझ गया सबको, क्यों हो रहा है यहाँ पे। इसके लिए रीजन दो है, एक डी ट्रांजिशन, दूसरा कौन सा, चार्ज ट्रांसफर। डी ट्रांजिशन में लिगैंड शुड बी प्रेजेंट फॉर स्प्लिटिंग, एंड सेकंड रीजन इज कॉन्फिगरेशन बिटवीन क्या होता है, D1 to D9 होना चाहिए। D1 to और D9 बहुत सिंपल है। देखो ये मतलब यहां से कलर कॉम्प्लेक्स आपका मेन पार्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। लिगैंड शुड बी व्हाट इज प्रेजेंट, and next configuration between what the D1 to D9, between D1 to D9. पारी जोर से हो रही है, सबको क्लियर है यहां तक। स्टूडेंट टेल मी इज इट क्लियर, तो आगे बढ़ता हूं। फटाफट टेल मी आंसर, इज इट क्लियर और नॉट। ये चीज आपको पूरा बुक पढ़ेंगे तो भी मिलने वाली नहीं है वहां पे। कलर आपको कौन सा है बुक वहां पे खोल के बैठोगे तो भी इतना क्लियर होगा नहीं, ढूंढ ढूंढ के निकाला है सबको। two regions, DD transition or just trans transfer. These two regions. See the next. Color coordination compounds.
देखो coordination entity, wavelength of light, color absorb and color of the entity. The wavelength of light is a 498. Wavelength varies from say 4 जो visible light है, the wavelength of visible light is a 400 नैनोमीटर टू द 750 नैनोमीटर. रेंज उसका कितना है? विजिबल लाइट का रेंज है 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर. उसके बीच में आपके विबजर कलर आएंगे, VI, BG, YO, ये कलर आने वाले. तो यहां से फर्स्ट जो कलर उसका 498 है. कलर ऑफ लाइट एब्सॉर्ब कितना है? कौन सा है? ब्लू ग्रीन है. कौन सा? ब्लू ग्रीन. ब्लू ग्रीन कलर जो आपने एग्जांपल देखा फर्स्ट स्टार्टिंग का TiH2 63 प्लस, इसमें D1 था, डी ट्रांजिशन था. दैट्स व्हाई जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा T2G लेवल से Ag लेवल में ट्रांसफर करेगा तो वो कलर कौन सा देगा? पर्पल. क्यों ट्रांसफर करेगा? क्योंकि लिगैंड आने वाला है, लिगैंड अप्रोचिंग करेगा तो एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप क्रॉस करके क्या करेगा? वो ट्रांजिशन कराएगा. एंड DXY2 क्या होगा? DX2 माइनस Y2 में जाएगा. That's why it gives the color. उसने कलर कौन सा एब्सॉर्ब किया है? ब्लू ग्रीन. और देगा कौन सा? पर्पल. नेक्स्ट है COCN63 माइनस, वेवलेंथ तो 310 है यहाँ पे गाइस, एक्सेप्शन रहेगा यहाँ पे देखेंगे. सॉरी लाइट का देखो अल्ट्रा वायलेट है, सॉरी विजिबल नहीं, ये क्या है? अल्ट्रा वायलेट है. अल्ट्रा वायलेट का विजिबल से भी कम है रेंज. अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है उसका वेवलेंथ जो है लेस देन 400, दैट इज 310. अल्ट्रावायलेट लाइट उसने एब्सॉर्ब किया है और देगा कलर कौन सा? पेल येलो. नेक्स्ट कंपाउंड है COCl NH3 2+, 535. कलर एब्सॉर्ब इज येलो, गिव्स व्हाट इज वायलेट. येलो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है? वायलेट. COCl NH3 दैट इज कोबाल्ट 5 6, राइट. यहाँ पे 4 होना चाहिए. NH3 4 H2 तो ऑक्टेट होना चाहिए यहाँ पे. 500. ब्लू ग्रीन है तो देगा कौन सा? पर्पल. देखो ब्लू ग्रीन के लिए क्या है? पर्पल है. ब्लू ग्रीन के लिए रेड या पर्पल, दोनों में से एक. नेक्स्ट है CONH363 प्लस 475, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्सॉर्ब करेज द ब्लू एंड कलर ऑफ एंटिटी इज येलो ऑरेंज. COH242 plus wavelength of light absorb is what is the 600, means lambda value is the 600. Color of light absorb is the red and color of entity is the blue. तो क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके ऊपर देखो. क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखो, समझ लो. CuH2O42 plus it absorb the red color and emit blue. Give reason, give the explanation. क्या आपको देना है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन इसका देना है. आपको कलर ऐसा कौन सा है वो दिया है, कलर इमिट करने वाला वो भी दिया है. खाली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है? रीजंस. उनके रीजंस क्या? उनके फर्स्ट रीजन इज डीडी ट्रांजेक्शन और सेकंड रीजन क्या है? चार्ज ट्रांसफर. तो ये पार्ट किसका है? इज अ पार्ट ऑफ द डीडी ट्रांजेक्शन. डीडी ट्रांजेक्शन 2 पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? दैट इज अ लिगैंड शुड बी प्रेजेंट देयर इन फॉर स्प्लिटिंग. एंड सेकंड व्हाट इज द सेकंड रीजन? क्या बोल सकता है सेकंड रीजन? व्हाट वाज द सेकंड रीजन? डीडी ट्रांजेक्शन के लिए 2 रीजन बताया. फर्स्ट कौन सा? लिगैंड शुड बी प्रेजेंट. लिगैंड प्रेजेंट है. सेकंड रीजन क्या होना चाहिए? तो वहां पर कलर मिलने वाला है. कॉन्ट्रेस्ट शुड बी बिटवीन D1 to D9, राइट इरल. D1 और D9. अभी कॉपर में यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है. क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इट गिव्स व्हाट इज द एब्सॉर्ब द रेड कलर. आपको वहां पे कॉपर का क्या लिखना है? एटॉमिक नंबर, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट. उसके बाद मैंने जहाँ पे जो डायग्राम ड्रॉ किया, डी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कैसा हो रहा है वो दिखाना है, राइट. और वहां पे एक्सप्लेन करना है इट एब्सॉर्ब red lights and because of DD transition it emit blue color. मींस आपको दिखेगा कैसा? वो ब्लू दिखेगा. लेकिन लेता कलर कौन सा है? रेड. रेड ले रहा है, दे रहा है कौन सा? ब्लू. इट एब्सॉर्ब द रेड लाइट बट गिव्स व्हाट इज द ब्लू लाइट गाइस. क्या देने वाला है? ब्लू लाइट. ओके. सी द नेक्स्ट एग्जांपल.
TiH2O6 is a color while SCH2O6 3 plus is a colorless. Why? तो क्वेश्चन आपको दिया मैंने, TiH2O6 3 plus is a color while SCH2O6 3 plus is a colorless. Why? तो Ti, what Ti titaniums is oxidation, sorry, Z atomic number सबको पता है अभी कितना दिया था मैंने, 22. कितना था? 22. ये मैंने डायग्राम ड्रॉ करके लिया यहाँ पे. जो जरूरी है यहाँ पे मुझे डी ट्रांजिशन दिखाना है, कलर कौन सा है वो दिखाना है. कलर कलर बोला यहाँ पे, कलर कौन सा पूछा नहीं है, कलर और कलरलेस इतना ही बताने का है. कलर कब होता है? जब डी ट्रांजिशन होगा. तो कलरलेस कब होता है? जब डी ट्रांजिशन नहीं है. तो कलर यहाँ पे टी आई, देखो टी आई का इलेक्ट्रॉन वन ही है, ओनली वन. टी आई 3 प्लस कितना है? D1. D1 कहाँ जाएगा? DXY में जाएगा. जब इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा, जब लिगैंड्स आएंगे तो लिगैंड्स आएंगे, डी ट्रांजिशन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन DXY में है, DXY का कहाँ पे जाएगा? DX² माइनस Y² में जंप करेगा. मतलब यहाँ पे क्या हो गया? DD ट्रांजिशन पॉसिबल है. There is a DD transition as well as ligands are there. Ligands भी कौन है? H2O6. Ligands present, DD transition possible. That's why it is a color. कौन सा कलर पूछा नहीं है गाइस, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं. एक्स्ट्रा आपको मालूम है it's a absorbed blue color and gives what is a purple. या कौन सा था वो? पर्पल. हाँ, ब्लू कलर and gives what is a purple. Means absorbed color is a blue and gives color is a emit color is a purple. ये आपको मालूम है तो लिख सकते हो. इतना ही लिखना है आपको यहाँ पे, कलर है या नहीं, कलर देता है या नहीं है. DD transition possible as well as ligands are present there. That's why it gives a color. ये उसका फर्स्ट रीजन. यहाँ पे लिखो, जैसा कि इसका सेंटर मेटा एटम कौन है यहाँ पे? Ti is the center मेटा एटम. इनके DXY DYZ डायग्राम आपको ड्रॉ करना है. उसके बाद उसका एटॉमिक नंबर और Ti का एटॉमिक नंबर क्या? Ti 3 प्लस, Z इज इक्वल टू 22. Ti 3 प्लस इज इक्वल टू, कॉन्फ़िगरेशन लिखो क्या है? आर्गॉन 3D140, राइट? 3D1. DD transition is possible when there is a D1 to D9. यहाँ पे D1 है ना D1. That's why it gives what is a color. DD transition T2G2 EG orbital हो रहा है. That's why it gives a color. So TiH2O6 3 plus is a colored. ये क्या है? Colored है, यानी कलर देगा. देखिए SCH2O6 देखेंगे आप, SCH2O6 यहाँ पे चेक करो आप, पीरियोडिक टेबल में जाओ, वहां पे SC देखो, SC तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, और उसका SC3 प्लस में उसका कितना आएगा. वहां पे आपको DD ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, डी ऑर्बिट वहां पे मिलेगा नहीं, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है. हेंस डी इलेक्ट्रॉन्स, नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन SC3 प्लस. दैट्स व्हाई नो लाइट इज एब्सॉर्ब फॉर द DD ट्रांजिशन. DD ट्रांजिशन होने के लिए आपके पास क्या चाहिए? डी इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. तो SC3 प्लस के लिए देखेंगे आप, वहां पे डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, डी इलेक्ट्रॉन में नहीं है. डी इलेक्ट्रॉन में डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, प्लस उसमें अनपेड भी होना चाहिए. अनपेड और डी होगा तो ही वहां पे क्या होगा? DD ट्रांजिशन होने वाला है. जब DD ट्रांजिशन होगा तो ही वहां पे कलर होने वाला है. यानी SCH2O यहाँ पे लिगैंड है लेकिन डी ट्रांजिशन नहीं है. डी ट्रांसफर, डी से डी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के लिए वहां पे डी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है, right? Mean no d electron, hence no light is absorbed for DD transition. That's why SCH2O6 3 plus is a colorless. Is the reason. ये भी आपको ड्रॉ करके नीचे, ये ऊपर डायग्राम नीचे ड्रॉ करके भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. आपको वहां पे क्या लिखना है? उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना है. तो लिखोगे SC3 प्लस, तो वहां पे D इलेक्ट्रॉन 0 दिखेगा. वहां पे देखो 3D 0 आएगा, 4A 0 आएगा वहां पे. यू कैन चेक इट्स. मैंने यहाँ पे आपको लिखा नहीं है, आपको खाली ऊपर का पार्ट लिखा है, नीचे का पार्ट आपको कंप्लीट करना है. ओके, समझ गए ये आंसर? डू यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन? सबको क्वेश्चन क्लियर है क्या? TiH2O6 3 प्लस इज कलर. सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है? उनका एटॉमिक नंबर 22 और इसका कितना है? आई थिंक 21 थिंग रहेगा, राइट? 3 प्लस है तो 18 होने वाला है. 3D0 4A0 और इसका कितना है? 3D1 4A0 Ti का. Ti only one electron here. DD transition is possible. Means from T2G to T2G तो क्या होगा? EG होगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा. क्यों जा रहा है वो? बिकॉज ऑफ लिगैंड आ रहे हैं. कौन लिगैंड है? H2O6. एनर्जी क्या है उसमें, राइट?
That's why it absorbs the blue color and gives what the purple. That is the color. But SCH2O6, no D electron, hence there is no DD transaction. Therefore, the SCH2O6 3 plus is a colorless. It is a colorless. No DD transaction. Ligands are present, but no DD transaction. Getting it? समझा? Is it clear, students? सबको ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? Student, reply me fast. या और एक्सप्लेन करना चाहिए इसको? ओके, समीर, हिरल, कितने आदमी हैं यहाँ पे? ओके, दीप, सृष्टि, नहीं समझ आया तो बोलो, एक्सप्लेन कर दूंगा वापस. अनुराग, यानी कलर क्यों दे रहा है समझ में आपको? यानी डीडी ट्रांजिशन हो रहा है इसीलिए, और लिगेंड्स के लिए, राइट? एग्जाम्पल आपको क्लियर है? आप नोट डाउन करना एग्जाम्पल को, बाद में लिखना वहां पे. ऐसे क्वेश्चन दूसरे अलग भी टाइप के आ सकते हैं. यहाँ पे कंपाउंड जो दिया है उसके बदले दूसरे भी दे सकते हैं. तो आपको वहां पे रीजन तो वही रहेगा, कलर दे रहा है क्यों, कलर नहीं दे रहा, या आपको कलर वहां पे दिया रहेगा, कलर कौन सा इमिट होने वाला है. अलग कलर कौन सा होगा, कलर कौन सा एब्सॉर्ब करेगा और कलर कौन सा देगा, इसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे. अभी कलर ब्लू दिया है, पर्पल देता है या दूसरा कौन सा कलर देता है, ये भी आपको पढ़ना है. तो ये जो क्वेश्चन है हम इस ब्रेक के बाद, यानी कि 5 मिनट का ब्रेक है, इस 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे. और वहां पे डोंट बी, अभी भी जो ज्वाइन हो गए सबको ज्वाइन होना है. यहाँ पे मिस नहीं होना चाहिए. वापस नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से आपको ट्रिक मिलने वाली है, वो ट्रिक से आप बाकी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. एंट्रेंस के हो, CD, NDA, IIT, नीट, JEE जितने भी एग्जाम है वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं. वो क्वेश्चन आपको अभी नेक्स्ट सेशन में होने वाला है. सो डोंट मिस इट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो डोंट मिस गाइस. 5 मिनट के ब्रेक बाद वापस सबको ज्वाइन. 5 मिनट के ब्रेक, ओनली 5 मिनट ब्रेक. ओके, सो डोंट मिस इट. वहां पे आपको एंट्रेंस में जो आने वाले क्वेश्चन आए थे क्वेश्चन वो भी हो गए, और आने वाले क्वेश्चन वो भी होने वाले. सो don't miss the next session, that is lecture number 13 part 2. Okay, so